Hello students, welcome to my channel Study and So with Harveer. Today I am going to tell you about our environment chapter 8. Yes, we are back with this chapter again. This is the part 2 of chapter number 8. So in previous video we covered till this topic. Now we have to start this one, water pollution. The remaining sources of water pollution are the waste from industries and the sewage pipelines that comes from home and the other buildings in the villages. The lakes or rivers are polluted due to the various activities done in or near the water resource. Villagers depend on the lake or river for washing clothes and bathing cattle. The dirt and soap from all the washing goes into the water and cause pollution. Soap from all the washing goes from water and cause pollution. The soil waste dumped in the water also cause water pollution. Seas and oceans have a threat from oil spillage from the ship that transport oil. The oil does not mix with the water and harms the lives of plants and animals living in these water bodies. तो गाइस इस पैरे में ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये दो सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन वो है इंडस्ट्री सीवेज पाइपलाइन, जो हमारे घर में से पाइपलाइन आती है ना सीवेज की, वो सारी लेक्स में जाती है. बिल्डिंग में से बड़ी बड़ी वो सारी लेक में जाती है. और एक और बात, जो वो गांव वासी होते हैं वो नदियों पे डिपेंड करते हैं, वो उसमें बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि अपने जानवरों को उसमें नला दिया, कैटल्स को, उसमें कपड़े धोते रहते हैं. और जो सारा वो गंदा सोप है और मिट्टी उसमें जाती है पानी में, जो ओशन और लेक्स और रिवर्स वाले. और जो सी और ओशन होते हैं उनको एक बहुत ज़्यादा खतरा होता है ऑयल स्पिलेज में से. आपने सुना होगा कई US गैलन्स ऑफ ये ऑयल गिर जाता है, जो कि ये शिप में से लेके जाते हैं. तो जो ऑयल होता है वो पानी में मिक्स नहीं करता और वो हार्म करता है, जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको हार्म करता है जो पानी में रहते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. Pollution of water makes it unfit for human use. Sewage contains harmful germs that cause diseases such as cholera, diarrhea, and typhoid. If these germs are present in drinking water, they can cause diseases. तो जो pollution, पानी का pollution हमें बहुत सूट नहीं करता. मतलब कि अगर हम पी जाए तो हम बीमार हो सकते हैं. उनमें जो जर्म्स होते हैं वो हमें बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जैसे कि ये क्लोरिया, डायरिया और टाइफाइड. अगर ये पीने वाले पानी में हो तो हमें बहुत सारी डिसीजेज हो सकती है. इस पर हमें ये कहना चाहते हैं. आप इसको एक बार फिर से रीड आउट कर सकते हैं. Next, science in contact. The Exxon Valdez oil spillage in Alaska happened on March 24, 1989. A tanker was carrying 55 million US gallons of crude oil and met with an accident, causing the spillage of oil into the seawater. This caused a loss of life of many animals such as sea otters, seals, bald eagles, and seabirds. Fish population in the sea was disturbed, and a decrease in fish population caused a huge loss to the people working in the fish industry. इसमें ये बता रहे हैं कि
जो एक्सॉन वेल्ड जो तेल गिर गया था अलास्का में ऑन 24 मार्च 1989, एक टैंकर था, वो लेके जा रहा था 55 US गैलन्स ऑफ क्रूड ऑयल, पर अफसोस इसके साथ इसका सारा इसमें जो ऑयल था वो सारा सी में गिर गया। उससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जो सी इंडस्ट्रीज़ का, पूरी सी पॉपुलेशन का, जो पीपल काम करते थे फिश इंडस्ट्री में, उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। सी ऑटर्स, सी ब्लैड ईगल्स एंड सी बर्ड्स population in the sea was disturbed। मतलब कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई थी सी में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। डंपिंग वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग्स, glass and metal containers cause land pollution. Overuse of chemicals such as fertilizers, insecticides and pesticides also cause land pollution. Soil is held together by the roots of tree. Deforestation or cutting of trees make the soil loose. This loose soil is easily carried away by the blowing wind. The rainwater also washes off the loose soil. The process of removal of top layer of soil by the wind and rainwater is called soil erosion. तो इस पैरा में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सारा कचरा, प्लास्टिक बैग, ग्लास मेटल्स, कंटेनर ऐसे ही फेंक देंगे, वो लैंड पोल्यूशन का, उससे लैंड पोल्यूशन होगा। केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करना, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये भी लैंड पोल्यूशन करते हैं। तो जो मिट्टी है वो पेड़ों के द्वारा, जो पेड़ होते हैं वो ऐसे पकड़ लेते हैं उसको और उसको छोड़ने नहीं देते। तो जैसे कि अगर हम पेड़ काट देंगे तो वो सॉइल लूज हो जाएगी, और जो वो लूज सॉइल हो जाएगी तो वो बहती हवाएं उसको ले जाएगी सॉइल को, और जो पानी होगा, बारिश का पानी, वो उसको अपने साथ ले जाएगी, धो देगी उसको। तो इस रिमूवल ऑफ टॉप साइड, जो ऊपर की लेयर होती है अर्थ की, जब वो रिमूव हो जाती है उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ये भी इनके मेन कारण है, आप इनको याद लर्न कर सकते हैं। एक तो सॉइल इरोजन, और इनको आप लर्न कर सकते हैं। Let's move to next topic, noise pollution. Noise pollution is caused by loud sounds that disturb the normal activities of human beings and animals. तो जो ये नॉइस पोल्यूशन है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे साउंड से क्रिएट होते हैं, जो कि हमें और जानवरों को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब आपके घर के आसपास कहीं शादी होगी तो वो लाउड स्पीकर बजाते हैं, आपके घर की खिड़कियाँ खड़कती है, तब आपको बहुत ज़्यादा वो होता है, इम्पेयरमेंट, ज़्यादा इम्पेयरमेंट सी होती है ना। Honking of vehicles, sound from the loudspeaker, television etc. cause noise pollution. ये आप लर्न कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Noise from firecracker, the construction of building and roads also cause noise pollution. Noise pollution has many adverse health effects such as hypertension, hearing impairment, increase in the risk of heart disease and sleep disturbance. तो इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट, कम सुनने लग जाएगा, आपके इंक्रीज हो जाएगा हार्ट, जो वो हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा हो जाएंगे, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा,
और हाइपरटेंशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, सेविंग द इन्वायरमेंट। तो गाइज आप ना इसमें ये 4 या 5 क्वेश्चन ये लर्न कर लीजिएगा, तो बाकी के जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं बहुत ज़्यादा, आपको याद करने में ये ज़्यादा आसानी होगी। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मैन्योर्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर फील्ड्स यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ फैक्ट्रीज फार फ्रॉम द मेन सिटी, यूज ऑफ सोलर एनर्जी शुड बी इनकरेज। सो गाइज हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। बाय।